Thank you for reading the scripture. I like more Sunday school children on the stage. मैं संडे स्कूल के बच्चों को यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. Okay. So today, we all know that after the service we have a baby shower. जैसे हम सभी को पता है कि ये मीटिंग के बाद बेबी शावर का प्रोग्राम है. And followed by lunch. और उसके बाद हम दोपहर का खाना भी साथ में खाएंगे. So hope you don't mind the time. मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा समय लूँगा तो भी आप कुछ नहीं कहोगे. Okay. Today we are going to talk about the wedding at Cana. आज हम जो काना गांव की शादी है उसके बारे में देखने जा रहे हैं. So you know that what we studied last week. हम सभी को पता है हमने पिछले सप्ताह क्या अभ्यास किया था. We have seen the purpose of John writing the gospel. हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके लिखने का विषय और उसका लिखने का उद्देश्य क्या था उसके बारे में सीखा था. We have seen the two things, that is, he wants a total dependence of God on God. हमने दो बातों को देखा था जिसमें विश्वास और पूर्ण रीति से निर्भरता के बारे में हमने देखा था. And that leads us to have the eternal life. और वो दो चीज़ें हमें अनंत काल के जीवन की तरफ लेके जाते हैं. So this is the purpose of John writing the gospel. और यही यूहन्ना रचित सुसमाचार का उद्देश्य है. In the first chapter we have seen 6 arguments that John gave why we should believe in Jesus. पहले अध्याय में हमने 6 बातों को यानी कि 6 तर्कों को देखा था जिसके तरीके से या जिसका अभ्यास करके हम क्यों उसके ऊपर विश्वास करते हैं. After giving that introduction, he straight away moved to the second chapter. और ये सब बातें कहकर वो यूहन्ना जो है दूसरे अध्याय की तरफ जाता है. Here he mentioned 2 important incidences. और यहाँ पर भी यूहन्ना 2 महत्वपूर्ण बातों को दिखाता है. I just wanted to tell you from the beginning that John is not interested in chronology. मैं पहले से आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में ज़्यादा उत्साहित नहीं है. Among the gospel, the man who was more interested in chronology was Luke. जो पीढ़ियों के बारे में लिखता है वो लूका है. That is what he writes in the first few chapters, first few verses, that I wanted to write something in an orderly manner. और इसीलिए यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ बातें लिखना चाहता था. That was not the purpose of John. ये यूहन्ना का उद्देश्य नहीं था. So John gives 2 incidences randomly. One is the wedding at Cana. यहाँ पर यूहन्ना 2 बातों को बताता है और पहली बात काना गांव की शादी. And another is Jesus cleaning the temple. और दूसरी बात जो यीशु मसीह जो मंदिर है उसकी साफ सफाई करते हैं. 2 are very important. और ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है. But because of our time, that we will be concentrating more on the first one. हमारे समय के वजह से हम सिर्फ एक ही बात को देखेंगे. So that is a very familiar passage and very familiar incident. Jesus attended the wedding at Cana. ये एक परिचित बात है कि जो यीशु मसीह काना गांव की शादी में है. If you have gone to any Christian wedding, अगर हम कहीं भी जो मसीह शादी है मसीह विवाह है वहाँ पर गए होंगे, at least the song, शायद गाना, otherwise the message, या संदेश, if not these 2, at least mention of the wedding at Cana in the prayer. कम से कम प्रार्थना में हम काना गांव की जो शादी है उसके बारे में सुनते हैं. Probably would not have escaped. और ये बातें शायद नहीं दूर नहीं की जा सकती. John starts this saying on the 3rd day. यूहन्ना इस बात को इस तरह से शुरू करता है कि तीसरे दिन. And nobody knows where he is counting the 3rd day.
और किसी को पता नहीं है कि ये तीसरा दिन कहाँ है या किस बारे में यूहन्ना बता रहा And है। commentators have various views on this. और टीकाकारों के अलग अलग इस बात के ऊपर राय है। And for our convenience, we can say that Jesus had an interaction with Nathanael. हमारी समझ के लिए हम नतनिएल के साथ यीशु मसीह के बात करने के तीसरे दिन के बाद Maybe after meeting Nathanael, after 3 days, that Jesus went to the wedding at Cana. नतनिएल को मिलने के बाद मिलने के तीसरे दिन बाद यीशु मसीह काना गांव की शादी में जाते हैं। So why I am saying is in John 1st chapter 50th verse, Jesus said to Nathanael that you will see greater thing than this. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 50 वचन ये कहता है, यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर वृक्ष के नीचे देखा, क्या इसलिए तू विश्वास करता है? तू इनसे भी बड़े बड़े काम देखेगा। You will see greater thing than this. यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। Now he is taking Nathanael along with him to show him the greater things. और अब यीशु मसीह नतनिएल को उसके साथ लेकर जाते हैं वो बड़े काम देखने के लिए। Probably we know that by this time Jesus would have got the 12 disciples. और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के उसके जो चेले हैं वो उनके साथ होंगे। Because John is not giving all the how Jesus called all the 12 disciples. क्योंकि यूहन्ना अपने सुसमाचार में जो शिष्य है उनके बुलाए जाने का वर्णन नहीं करता That है। we take from the other gospels. वो हम दूसरे जो सुसमाचार है उनमें से लेते हैं। So we assume that it is Jesus and his 12 disciples were there in the wedding at Cana. तो हम ये तर्क लगा सकते हैं कि यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह उस शादी में सम्मिलित थे। And it is interesting that Jesus' mother was also called. और ये बहुत आनंदमय है कि यीशु मसीह की माँ भी वहाँ पर आमंत्रित थी। And Cana is only around 4 miles from Nazareth where Jesus was. काना जो गांव है वो 4 मील की दूरी पर था नाजरेत के गांव से जहाँ पर यीशु मसीह रहते थे। Probably it would have been a relative's marriage. शायद वो यीशु मसीह के कोई संबंधियों की शादी में गए होंगे। Maybe it's a prominent figure in that place. और शायद वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात या वो इंसान वहाँ पर होगा उसकी शादी में। That is why the entire family was there for the wedding. और इसी के वजह से यीशु मसीह की पूरी फैमिली वहाँ पर शादी में है। Before we go into further, I just wanted to give a little background about the wedding of that culture. इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं थोड़ी पृष्ठभूमि इस संदेश के बारे में या इस गांव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Interestingly, a virgin girl will have the wedding on Wednesdays. किसी भी कुंवारी लड़की की शादी जो होती थी वो बुधवार को होती थी। If she is a widow, the wedding will happen on Thursday. और विधवा का विवाह गुरुवार को प्रारंभ होता था। And normally the wedding will take for a week, 7 days. तकरीबन जो शादी है वो 7 दिनों तक मनाई जाती थी। Most of the marriages are arranged marriages. अधिकांश विवाह जो है वो परिवारों द्वारा तय किए जाते थे। Unlike nowadays. जैसे कि हम आज नहीं देखते। Even my wedding is an arranged wedding. मेरा पास्टर का जो शादी है वो भी परिवारों द्वारा तय किया गया हुआ है। मेरा? Okay. So generally the parents they fix the wedding. अधिकांश या मुख्यतः जो परिवार है या जो माँ बाप है वो बच्चों की शादी तय कराते थे। Normally the wedding, that is the ceremony, it starts very early when the girl is in the teenage. जो लड़की है वो एक किशोरावस्था में रहती है तभी उनकी जो मंगनी है वो होती थी। So what they normally do, first they go for a betrothal. पहली बात वो ये करते थे कि वो मंगनी करते थे। The betrothal is a ceremony which is conducted among the in the presence of the elders with signing a contract. जो मंगनी का जो समारोह था वो एक बड़े या बुजुर्गों की उपस्थिति में एक अनुबंध हस्ताक्षर करके होता था। It also deal with the bride money the groom has to give. और इसमें जो
शादी का पैसा है या फिर क्या बोलते हैं उसकी, Yeah, the groom will pay some money to the bride's family for that wedding. लड़का जो है वो लड़की के परिवार को कुछ पैसे देता था. Okay. So this is how that the agreement is signed. That means they are legally betrothed. और इसी तरह से ये उपस्थिति में जो अनुबंध है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते थे. Since the girl was at a lower age, जैसे कि जो लड़की है वो किशोरावस्था में है या उसकी आयु जो है वो कम है, after the betrothal ceremony, मंगनी के बाद the girl will go to her place and the boy will go to his place. लड़की जो वधू है वो उसके घर में और वर जो है वो उसके घर में चले जाते हैं. And the wedding may take after a year or so. और जो शादी का जो समारोह है वो तकरीबन 1 साल या फिर जो टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम में होता था. But this is a period of a contractual period. ये जो एक समय है, ये कार्यकाल जो है वो एक वाचा की तरह होता था. And it is very important for the girl's parents to keep her virgin till the actual wedding happens. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी उस वधू के परिवार को के लिए होता था कि अपनी बेटी को एक अच्छी या किशोरावस्था में रखे. I'll just remind you of Mary and Joseph. मैं आपको मरियम और यूसुफ के बारे में बताना चाहता Their हूँ. betrothal was over, उनकी मंगनी हो चुकी थी, but Mary became pregnant. और इसी अवधि में मरियम हमें पता चलता है कि गर्भवती पाई That जाती was a है. terrible situation. उस समय किसी लड़की के लिए वो परिस्थिति जो है वो अत्यंत It कठिन is होती not है. only for the girl, it is for the entire girl's family. ये सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए कठिन समय होता है. That is why God has to send his angel to talk to Joseph and also to Mary to make the things happen. और इसीलिए परमेश्वर ने ये जरूरी सोचा कि उसके दूत को भेजकर ये बातें मरियम और यूसुफ को बताएं. You know, Apostle Paul, he talks in 2 Corinthians 11 chapter and 2nd verse. संत पौलुस पहला 2 Corinthians दूसरा 11:2. कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और दूसरे वचन में कहता है, He says, I betroth you to one husband to present you as a pure virgin in Christ. 2 Corinthians chapter 11 and verse 2. 11 दूसरा कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और दूसरा वचन ये कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है, तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूं. So the interesting thing is, after the maybe a period of 1 year or so, the husband will make a procession to the girl's place. और वो जो समय होता है उसके बाद जो दूल्हा होता है वो लड़की के घर जाता है. With all pomp and show, they will go and he will bring the girl, and then the wedding ceremony starts for 7 days. और सब कुछ चीज़ें लेके जाके वहाँ लड़कियों जो दुल्हन है उसके घर जाते थे और जो शादी का समारोह होता है वो शुरू होता है. You can also recollect the 10 virgins. They were waiting for the bridegroom to come. हमें यीशु मसीह का 10 कुंवारियों का दृष्टांत भी याद आता है, जो आधी रात को दूल्हा आता है और वर्जिन को अपने साथ लेके जाता है. The bridegroom will tell that when he will come, but he will not tell the time. दूल्हा कहेगा कि मैं आऊँगा, लेकिन जो समय है उसके बारे में दूल्हा नहीं They बताएगा. have to be prepared. इसीलिए दुल्हन जो है उसको तैयार रहना जरूरी That is था. how Jesus is coming. He is saying that I will definitely come, then you be prepared. और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, लेकिन हमें तैयार रहना जरूरी है. Okay, I think this is something related to the wedding ceremonies. और ये सब चीज़ें जो है ये शादी के बारे में हमने देखें. And it is interesting that the Bible starts with the creation and it ends with a new creation. और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो बाइबल है वो सृष्टि से शुरुआत होती है और ख़त्म उसका अंत जो है वो नई सृष्टि के साथ होता है. And in further interesting, the Bible starts with a wedding in the Garden of Eden, and it also ends with a wedding
feast. और ये भी बहुत ज़्यादा आनंददायक है कि जो पहली शादी है वो अदन की वाटिका में होती है और बाइबल शुरू होती है और अंत में हम देखते हैं कि एक शादी का जो बड़ा उत्सव है उसके साथ खत्म So होता है। Bible gives us a special relationship between God and us is related to the wedding relationship. बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारा जो नाता है वो परमेश्वर हमारा एक विवाह के तरीके से है। So before we go further, we would like to have a few observations from this passage. आगे बढ़ने से पहले हम यूहन्ना के वर्णन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। The first observation, Jesus called his mother woman. पहली बात यह है कि यीशु मसीह उसकी माँ को माँ नहीं बल्कि एक स्त्री करके पुकारता है। Anybody will call your mother woman? कोई हमारी माँ को स्त्री बोल के पुकार सकता But है। it is not a irrespectable calling. It is definitely a calling of respect in their culture, but it is not equivalent to calling mom. ये अपमानजनक नहीं था बल्कि एक सम्मान का संबोधन था। And they say that it is something calling somebody as madam or ma'am. जैसे हम आज के जमाने में मैडम या महोदया करके पुकारते हैं। Ma'am is a respectable way of calling a lady. मैम या महोदया जो शब्द है वो एक सम्मानजनक शब्द है जिससे हम हमारी महोदया को या मैम को पुकारते हैं। But it is not equivalent to calling us mother or mom. लेकिन हम हमारी माँ को ऐसे नहीं पुकारते हैं। Why Jesus did that? यीशु मसीह ने क्यों अपनी माँ को स्त्री करके पुकारा? You can remember that even Jesus, when he was on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, the same John writes that और वही यूहन्ना लिखता है, he called Mary as woman. यीशु मसीह ने मरियम को स्त्री करके पुकारा था। Woman, she is your son. स्त्री ये आपका बेटा है करके यीशु मसीह So बुलाता that है। is how Jesus called her. और इसी तरीके से यीशु मसीह मरियम को पुकारता है। Jesus is now about 30 years old. और यीशु मसीह इस समय 30 से अधिक की आयु में थे Now he will be in the business of his father. और अपने स्वर्गीय पिता के कार्य में लगे हुए थे। Mary was only to bring Jesus into this world. और मेरी सिर्फ यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए एक चैनल थी। She was used as a channel to bring Jesus into this world. वो एक बर्तन या एक तरीका था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। And the scholars, they believe by this time Joseph was no more. और जो लेखक है या अभ्यासक है वो ऐसा कहते हैं कि यूसुफ इस समय जो समय है इसमें नहीं थे। So the way that Jesus was calling Mary woman has lots to understand that Jesus was not giving the equal respect of him with her. यहाँ पर जो यीशु मसीह मरियम को माँ कहकर पुकारता है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह अपने जैसा जो सम्मान है वो अपनी माँ को मतलब वहाँ यहाँ पर मरियम को नहीं दिखा रहा है। When Luke writes about Mary, he says, Mary is blessed among the women. और जब लूका लिखता है तब लूका ये कहता है कि मरियम एक आशीषित है जो स्त्रियाँ हैं उनमें। But she is not blessed above women. लेकिन जो स्त्रियाँ हैं उनसे अधिक आशीषित नहीं है। Okay. So, then we will go to the second observation. दूसरी बात को हम देखेंगे। Jesus said, my hour has not yet come. यीशु ने मरियम से कहा मेरा समय अभी नहीं आया। My hour has not come. मेरा समय अभी नहीं आया। What do you mean by that? उसका मतलब क्या हो सकता है? The way Jesus was talking, the actual translation is, don't tell me what I have to do in the earthly ministry. जैसे यीशु मसीह ने मरियम को बोला था, उसका अर्थ ये था कि मेरी पृथ्वी की सेवकाई में मुझे यह मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। It was a little rebuke on Mary that Mary was trying to still control Jesus. ये मरियम के लिए एक हल्की सी फटकार थी, लेकिन फिर भी मरियम उसको सहन कर लेती है। And Mary cannot be a mediator for God and man.
और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मरियम कभी भी हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ नहीं हो The सकती। mediator is only Jesus. मध्यस्थ जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। And Mary's job is over. और यहाँ पर मरियम का जो काम है वो खत्म हो जाता है। So what Jesus was talking about, my time. यीशु मसीह मेरे समय के बारे में क्या कहते हैं? So we see that when we talk about my time जब हम मेरा समय के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं, or my hour, वो मेरा समय, Jesus was talking about a timetable that he was following that was given by God. यीशु मसीह उस समय सारणी को फॉलो कर रहे थे, उस समय सारणी का पालन कर रहे थे जिसको परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था। He has a specific time for everything. यीशु मसीह के लिए एक निश्चित समय है सब कुछ काम करने के लिए। And even for our life, God has a specific time for everything. और हमारे जीवनों के लिए भी एक निश्चित समय है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख के रखा है। When we go into the Gospel of John, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं, 5 times Jesus said, "My hour has not yet come." 5 बार यीशु मसीह लिखते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया। And 3 times he has told that my time has come. और 3 बार यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मेरा समय आ गया है। I just want to take you. This is the first place that what we read in John 2nd chapter 4th verse. My hour has not yet come. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और 4 आयत ये कहती है मेरा समय अभी नहीं आया है। And John 7:6 is again saying, "My time is yet to come." 7वां अध्याय और 6ठा वचन ये कहता है मेरा समय अभी नहीं आया है, तुम्हारे लिए कोई भी समय चलेगा। And John 7:8 he says, "You go to the festival. I am not going up to the festival because my time has not yet fully come." अध्याय 7 और वचन 8 ये कहता है तुम त्योहार में जाओ, मैं इस त्योहार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा समय अभी पूरी तरह से नहीं आया है। And John 7:30 he says, "And they tried to seize him, but no one laid a hand on him because his hour has not yet come." 7वां अध्याय और 30 आयत ये कहती है और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। And John 8:20, "Yet no one seized him because his hour had not yet come." 8वां अध्याय और आयत 20 ये कहती फिर भी किसी ने उसे नहीं पकड़ा क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। What we understand from this? इन बातों में से हमको क्या सीखने मिलता है? Anything happened in this world, it is by the perfect will of God. इस दुनिया में जो भी कुछ घटता है वो परमेश्वर की पूर्ण जो इच्छा है उसके अनुसार होता है। Jesus died on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर कुचले गए। Still people could not able to seize him because the time has not come. फिर भी लोग जो है वो उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था। So you all see that it all comes in the first half of John's gospel. और ये सब बातें पहला जो भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें हम देखते We हैं। have seen that John's gospel is divided into 2 parts. हमने देखा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो 2 भागों में बांटी गई है। All these things comes in the first part, Jesus saying, "My time hasn't come." और ये सब चीजें जो है ये पहले भाग में है जहाँ पर यीशु मसीह कहता है मेरा समय नहीं आया है। Now we will see that Jesus also tells that my time has और come. अब यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरा समय आ गया है। This is the second part. और ये दूसरा भाग है। And John 12:23, Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और आयत 23 ये कहती है यीशु ने जवाब दिया मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का समय आ गया है। And John 13:1, Jesus know that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. और 13 अध्याय और वचन 1 ये कहता है यीशु जानता था कि इस दुनिया को छोड़कर पिता के पास जाने का समय आ गया है। And John 17:1, "Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you." अध्याय 17 वचन 1 ये कहता है कि पिता समय आ गया है अपने बेटे को महिमान्वित करो ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारी महिमा करे। So when Jesus talking about the hour, जब यीशु मसीह उसके समय के बारे में बात it करता है talks about his crucifixion and glorification. वो उसके जो क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके महिमा के बारे में बताता है।
So we have two more observations. और हम दो और बातों को देखेंगे. And the third observation is, Mary told the servants, do whatever he tells you. और तीसरी बात हम ये सीखते हैं कि मरियम उनके जो सेवक है उनसे कहती है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना. The scholars, they say this is the greatest sermon Mary preached. और जो विद्वान है या अभ्यासक है वो ये कहते हैं कि ये सबसे छोटा बल्कि प्रभावशाली संदेश मरियम का था. What is the message? संदेश क्या था? Whatever he says, you do. संदेश ये था कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना. Don't ask any question. कोई भी सवाल मत पूछना. I think that is why they did what Jesus told. और इसी बात के वजह से उन्होंने वो किया जो यीशु मसीह ने उनसे They कहा have था. not asked anything. उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा. And what Jesus told, they did exactly the same thing. और जो यीशु मसीह ने बताया वही चीज जैसे कि वैसी उन्होंने की. And finally, John calls this as sign. और अंत में यूहन्ना इन सब चीजों को चिन्ह कहते हैं. Why you call it sign? यूहन्ना इन चीजों को चिन्ह क्यों कहते हैं? He can always call it as a miracle. वो इन चीजों को चमत्कार भी कह सकता है. Miracle is mostly need based. चिन्ह करने वाले व्यक्ति की सच्चाई और अधिकार को प्रमाणित करते हैं. Miracle is mostly need based. Need based. जरूरत का. जो चमत्कार है वो एक जरूरत के आधार पे होते हैं. Somebody is not well, then you are praying and he is getting healed. That's a miracle. It's a need based. अगर कोई यहाँ पर बीमार है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए हमने प्रार्थना की और वो उसको जो हेल्थ है वो मिल गया, उसको हम चमत्कार कहते हैं. But when you call that as sign, और जब हम उसी चीज को चिन्ह कहते हैं, it is not the person who is healed is important. The person who is healing is important. जब हम चिन्ह के बारे में बात करते हैं उस चीज में जो व्यक्ति यहाँ पर अच्छा हुआ है उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो अच्छा करने वाला है उसके बारे में हम देखते हैं. For small example, I'll give you. God gave signs to Moses. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को चिन्ह दिखाए थे. What for? किस चीज के लिए? It is not just for a snake to be. The snake is important or becoming blood is important. वहाँ पर जो सांप बनता है या जो खून बनता है वो ज्यादा जरूरी नहीं था. He say when you do this sign, people will believe you. और परमेश्वर वहाँ पर ये कहता है जब आप ये चिन्ह करोगे तब लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे. When you do this, the king Pharaoh will respect you. और जब आप ये सब चिन्ह करोगे तब फारो राजा आपका सम्मान करेगा. So when he calls this a sign, he says by doing this, Jesus is accredited. और जब यहाँ पर यूहन्ना चिन्ह के बारे में बताता है तब यीशु मसीह के जो गुण है उनको वो दिखाता है. He does this because he is the son of God. वो इसीलिए ये कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है. Okay, with this introduction, I'd like to bring a few important learnings from this passage. और इस प्रस्तावना के साथ मैं कुछ बातों को हम सभी के बीच में लाना चाहता So हूँ. what do we learn? हम क्या सीखते हैं? So we'll see four things. हम चार बातों को देखेंगे. Number one, Jesus honors wedding. पहली बात यह है कि यीशु शादी का सम्मान करते हैं. Wedding is created by God. जो विवाह है वो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है. It is created even before man sinned. ये जब मनुष्य ने पाप किया था उससे पहले जो शादी की रचना है वो की गई थी. It was not something happened after man sinned. ये ऐसी बात नहीं है कि जो मनुष्य ने पाप किया और उसके बाद रचा गया. And even it happens when we all go to heaven. और जब हम स्वर्ग में जाते हैं तब भी ये चीज को हम देखेंगे. And wedding is always made between a male and a female. और जो शादी है या विवाह है वो एक मनुष्य और एक जो औरत होती है उनके बीच में किया गया हुआ. For Adam, God created an Eve. आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया. So that is how the marriage is. और उसी तरह हम जो विवाह है उसको देखते Now हैं. the world is creating all the misorders.
जो दुनिया है वो अलग अलग बातों को इस दुनिया में तैयार कर रही है। Jesus is called the bridegroom, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है and the church is called the bride. और जो चर्च है, जो विश्वासी लोग हैं, वो दुल्हन है। We will be the bride, और हम दुल्हन होंगे and he is the bridegroom. और यीशु मसीह हमारा दुल्हा होगा। The wedding feast is the responsibility of whom? Bride or the bridegroom? Don't see our culture. It's a bridegroom. जो शादी की जो तैयारियां होती है, जो उत्सव होता है, वो एक जो दुल्हा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। Who pays the bride money? जो दुल्हन है उसका पैसा कौन देता है? The bridegroom pays the bride money. दुल्हा जो है वही दुल्हन का जो दुल्हन के लिए जो पैसा है वो पे करता He है। pays the dowry. यीशु मसीह हमारे लिए दौरी देते I हैं। am not going to say whether getting dowry and giving dowry is right or wrong. मैं ये नहीं बताना चाहता कि दौरी देना या दौरी लेना अच्छा है या बुरा है। But Bible talks about dowry that is given by the groom to the bride. यहाँ पे बाइबल में हम देखते हैं कि जो दौरी जो है वो दुल्हा जो है उसने दुल्हन के लिए दी I थी। think we'll follow that. He's not telling that. I did not listen. Okay. So, Jesus already paid the price. यीशु मसीह ने जो कीमत है वो चुका दी है। He paid a huge price of bride money to relieve us. और वो कीमत जो है वो बहुत आयत से चुका दी है ताकि हम छुटकारा पा सके, To make us betrothed that he has paid the bride money already. ताकि हमारी मंगनी हो सके कि जो पैसा जो है वो जो कीमत है वो दे दी गई है। And he comes and takes us for the wedding, and at his expense he is going to give a big party. और वो आता है और हमारी शादी के लिए लेके जाता है और वही उस शादी का जो खर्चा है वो सब उठाएगा। When we talk about marriage, जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं, the Bible also talks equally about singleness. वो बाइबल अकेले रहने के बारे में भी बताती है। Singleness is also acknowledged in the sight of God. अकेला रहना भी परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है। The perfect man who ever lived on this earth, he lived single. जो एक परफेक्ट मनुष्य था, जो एक निष्पाप मनुष्य था, वो भी अकेला रहकर दुनिया में जी गया। The best of the apostles, Apostle Paul, he lived single. प्रेरितों में से जो महान था वो भी अकेला रहकर जीवन जी गया। John the Baptist, he lived single. यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला भी अकेला रहा था। So Bible is not against singleness. बाइबल अकेले रहने के विरुद्ध नहीं है, Because this world is not so perfect that we could enjoy the fullness of the marriage. ये दुनिया जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें हम जो हमारे जो वैवाहिक आनंद है उसका हम आनंद ले सकें। Jesus talked singleness as a gift of God. यीशु मसीह ये कहते हैं कि अकेले रहना परमेश्वर की तरफ से वरदान Paul है। also talked about singleness, that it is for God that you can be single. पौलुस भी ये कहता है कि अकेले रहकर हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। It is not wrong to get married. शादी नहीं करना कुछ गुनाह नहीं है या कुछ बुरा नहीं है, It is not wrong to get being single. और अकेला रहना भी कुछ बुरा नहीं है। Bible talks of both. जो बाइबल है वो दोनों चीजों के बारे में बताती है। Ultimately, we are all going to get married. और अंत में हम सब शादी करेंगे, That marriage is more important. और वो शादी वो विवाह बहुत ज़्यादा जरूरी है। Okay. Then we'll see the second important thing that what we learned from this passage is Jesus meets our need and provides us in abundance. दूसरी बात को हम देखते हैं, यीशु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वो भी बहुत आयत से भरपूरी से देते हैं। Jesus meets our needs. यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। I don't know, but now I have not seen any quarrel in the North Indian weddings. पास्टर ये बता रहे हैं कि उन्होंने कोई जो
वाद विवाद है वो यहाँ दिल्ली की शादियों में नहीं देखा है या गुड़गांव की शादियों में नहीं देखा But है। in our time, I have seen so many fights on weddings based on hospitality. उनके समय में उन्होंने जो विवाह में झगड़े हैं वो देखे थे, वो अतिथि सत्कार को लेकर। The bride side will fight with the groom side, and the groom side will fight with the bride side, saying that we are not taken care of. दुल्हन के साइड के लोग दूल्हे के साइड के लोगों से झगड़ा करते थे और दूल्हे के साइड के लोग दुल्हन की साइड के लोगों से झगड़ा करते थे, ये कहकर कि हमारे अच्छे से परवरिश नहीं की गई या हमें अच्छी तरह का खाना नहीं मिला। We are not served meal first. That is a contentious issues. और वो ये भी कहते थे कि हमें पहले खाना नहीं खिलाया गया। And when food is served, nobody was there to take care of us. और जब खाना हमें दिया गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था जो हमारी देखभाल करे। I don't know, you also would have seen. मुझे नहीं पता, आपने भी शायद देखा होगा ये सब। But this particular miracle is something related to hospitality. और यहाँ पर जो चमत्कार है वो अतिथि सत्कार को लेकर था। This miracle is not equivalent to calming the storm. ये जो चमत्कार है वो जो समंदर है उसको शांत करने के बारे में नहीं था। People were all dying. जहाँ पर लोग जो है वो डर रहे थे, मर रहे Jesus थे। went and calmed the storm. और यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं और उस समंदर को, आंधी को शांत करते हैं। This is not equal to raising the dead. और ये चमत्कार इससे भी इक्वल नहीं है कि मृतकों को जिलाया जाता The only lady, the only son, he died, so he was going and Jesus made that miracle. The only lady, the only son, Jesus made the miracle of raising the son. जो एक औरत थी उसका एक ही बेटा था और जहाँ पर यीशु मसीह जाते हैं और उसके बच्चे को जिलाकर वो चमत्कार करते हैं। It's not even seeing that Jesus did a miracle of opening the eyes of a person who is born blind. ये चमत्कार इसके बारे में भी नहीं था जहाँ पर अंधों को दृष्टि यीशु मसीह देते हैं। It is not even feeding the 5,000. और ये चमत्कार इसके बारे में भी नहीं था जहाँ पर यीशु मसीह 5,000 लोगों को भोजन कराते हैं। People were all hungry, so Jesus multiplied the bread and the fish and he gave to them. लोग भूखे हैं और इस वजह से यीशु मसीह ने जो रोटियां हैं वो बहुत आयत कर दी और लोगों को खाना दिया। In this marriage, there was no shortage of food. इस शादी में खाने की कमी नहीं थी। Everybody's stomach is full. सबका पेट जो था वो फूल था, भरपूर। What was the problem? जो समस्या थी वो क्या थी? Problem was on the wine. जो समस्या जो थी वो ये थी कि दाखरस की कमी हो गई थी। That is something related to their entertainment. और ये जो चीज है वो उस समय के प्रति हुए। And Jesus stepped into that need. और यीशु मसीह उस समय में ये वहाँ पर आ जाते हैं। Jesus enters into every area of our life. और यीशु मसीह हमारे जीवन के सभी कार्यों में आते हैं। Many of us think that Jesus is more interested in our spiritual life. हम बहुत बार सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे जो आत्मिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा दखल He is देते हैं। definitely interested in our spiritual life. और यीशु मसीह दखल देते ही हैं। He is very much interested in our needs. जो हमारी ज़रूरत है वो भी यीशु मसीह देखते हैं। But he is interested in everything of our life. लेकिन यीशु मसीह उन सब चीज़ों के लिए आनंदित होते हैं कि हमारे जीवनों में किस चीज़ की ज़रूरत है। It is mentioned there were 6 jars and each jar is around 120 liters. और ये लिखा गया है कि वहाँ पर 6 पत्थर के मटके थे जिसमें लगभग 120 लीटर पानी रहता था। And what Jesus told? और यीशु मसीह ने क्या कहा? Put some water inside it. यीशु मसीह ने ये कहा कि उन मटकों में पानी भर दो। He told like that? What he told? यीशु मसीह ने क्या कहा? He specifically told, fill the jars with water. यीशु मसीह ने ये कहा कि मटकों को पानी से भर दो। And what they did? और उन्होंने क्या किया? They filled them to the brim. और उन्होंने उन मटकों को पूरे का पूरा भर दिया। Completely 120 into 6 jars were completely filled. 6 मटके 120 लीटर के पूरे उन्होंने भर दिए। Then Jesus asked them to take it to the that is captain of the feast.
फिर यीशु मसीह ने उसे निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाने के लिए कहा। It is not a small quantity, it's an abundant quantity he gave. यहाँ पर ये कुछ कम मात्रा में नहीं, लेकिन बहुत आयत की मात्रा में यीशु मसीह उनको दाखरस देते हैं। Jesus takes care of all our needs. यीशु मसीह हमारी सभी जरूरतों को देखते हैं। So when we pray to God, let us pray for everything that what we want. जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम उन सभी जरूरतों को यीशु के सामने रखें कि यीशु मसीह हमारा He wants us to be happy even in this world. यीशु मसीह हमारे जीवनों से ये चाहते हैं कि हम खुश रहें और हमारी चीज़ों को यीशु के सामने हम रखें। And the third thing, that Jesus transforms us to a better person. तीसरी बात को हम देखते हैं कि यीशु हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। So the master of the banquet went straight to the bridegroom. जब भोज का जो प्रधान है वो दूल्हे के पास जाता है, He has not gone there to congratulate him. वो वहाँ पर उसको मुबारकबाद देने के लिए नहीं जाता है। He went there to complain. वो वहाँ पर एक सवाल या प्रश्न पूछने के लिए जाता है। What was the complaint? वो उसका सवाल क्या था? It was not that you are given a bad wine, वो ये नहीं कहता कि आपने खराब दाखरस दिया है, but you are given a better wine. वो ये कहता है कि उत्तम दाखरस आपने अभी दिया है। Why you have kept this best wine till now? वो ये कहता है कि उत्तम दाखरस जो है वो आपने अभी तक क्यों रख के छोड़ा है? Jesus changed everything. यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। Their system was give something best at the beginning and gives the stale food at the end. उस संस्कृति में जो सबसे अच्छा होता है वो पहले दिया जाता था और जो खराब होता था उसको बाद में दिया जाता था। But when we go to Jesus, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, our life will go like this. हमारा जीवन जो है वो नीचे से ऊपर जाता है। It will not like this. हमारा जीवन ऊपर से नीचे नहीं आता। It will never go down. It will keep increasing the taste. वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर और ऊपर जाते जाएगा। That is why you always say the best is yet to come. और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे अच्छा है वो अभी आना बाकी है। In all our life, Jesus is going to have the best is yet to come. और हमारे सभी के जीवनों में हम ये अनुभव करेंगे कि जो अच्छा है वो अभी आना है। Shall we say amen to that? Yes, we all want that. हम सभी को वो God चाहिए। is doing something that He always gives the best and He keeps that till the end. परमेश्वर कुछ कर रहा है जो हमें सबसे अच्छा या उत्तम है वो मिलेगा और अंत तक हमें वो मिलते रहेगा। When Jesus can make an ordinary water into an expensive wine, जब यीशु मसीह उस साधारण पानी को एक उत्तम और जो महान ऐसे दाखरस में बदल सकता an है, ordinary water into an extraordinary wine, जो साधारण पानी है उसको असाधारण दाखरस में बदल सकता how है, much more He can transform us. कितना ज्यादा वो हमारे जीवनों को बदल We are सकता all है। made in His image. हम उसकी प्रतिकृति में बनाए गए He is हैं more interested in us. और वो हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा He will keep देखता working है। in us. वो हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा काम करते हैं। What for? किस चीज के लिए? To make us more tastier. इसलिए कि हमारे जीवनों में जो स्वाद है वो और भी अच्छा To बने, make us more fruitful for others. और इसलिए कि हमारे जीवनों में जो फल है वो दूसरों के लिए बहुत आयत से मिले। Just see the prodigal son. हम उदंड पुत्र या उड़ाव पुत्र के बारे में देखते He हैं। came with all toned cloth. वो जो उसके कपड़े थे वो सब फटे हुए थे और उस अवस्था में आता है। The next moment he came to his father, he changed him completely. और अगला ही क्षण जब वो उसके पिता के पास आता है वो पूर्ण रीति से बदल जाता He है। was not even able to eat the pig's food. वो ऐसी परिस्थिति में था कि जो सुअर खाना खाते थे वो भी वो नहीं खा सकता था। The next moment he was sitting in a banquet with a fattened calf. और अगले ही या एक ही क्षण में वो वहां पर एक मोटे बछड़े के भोज में बैठा हुआ होता है। This is what Jesus do to us. वो यही यीशु मसीह हमारे जीवनों के He साथ करते हैं। transforms us to a better वो person. हमारे जीवनों को परिवर्तित करते हैं ताकि हम एक अच्छा इंसान बन जाए। And finally, और लास्ट में and most importantly, और बहुत ज्यादा जरूरी, Jesus is our new wine. यीशु मसीह हमारी नई दाखरस है। I just wanted to remind you of the Passover, Jesus.
मैं आपको फसह के उस भोज के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। Jesus did that with his disciples. यीशु मसीह ने वो अपने जो शिष्य थे उनके साथ किया था, That we see in the John's Gospel in the later stage. और उसको हम यूहन्ना की जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसमें देखते हैं। What Jesus said, यीशु मसीह क्या कहते हैं? he took the bread उन्होंने रोटी लेकर कहा and he broke the bread और उसने वो रोटी जो हो उसको तोड़ा and said, "This is my body. और वो ये कहता है कि ये मेरा शरीर है This is broken for you." और ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। And after that he took the cup. और उसके बाद उसने कटोरा लिया And what he said, और कटोरा लेकर क्या कहता है? "This is my blood of the new covenant, वो ये कहता है कि यह नई वाचा का मेरा लहू है which is poured out for many for the forgiveness of sins." जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। It is not the cup of wine has become the cup of blood. ये वो कटोरा नहीं है जिसमें दाखरस थी और वो हमारे लिए लहू बनता है। Jesus is our new wine. यीशु मसीह ही हमारी नई दाखरस है। He gave that wine to the disciples to drink. यीशु मसीह ने उस दाखरस को अपने शिष्यों को दिया And he says, "This is my blood." और वो ये कहता है कि ये मेरा लहू है। Probably they would not have understood by that time. शायद वो जो शिष्य थे वो उस समय नहीं समझ पाए होंगे। After 3 days they understood that. 3 दिनों के बाद उनको ये बात समझ में आई। Jesus shed his blood on the cross. यीशु मसीह ने अपना लहू जो था वो उस क्रूस के ऊपर बहा That दिया is the new wine. और वही एक नई दाखरस है That makes everybody joyful. और वही चीज हम सभी को आनंदित करती है। Now we don't enjoy with this wine. हम इस दाखरस के साथ आनंद नहीं करते, We enjoy with the blood of Jesus. हम उस यीशु मसीह के लहू के साथ हम आनंद करते This was a temporary joy, ये कुछ समय के लिए मिलने वाला आनंद था, but the joy that what he gives is a permanent joy. लेकिन जो आनंद यीशु मसीह गिरता है वो अनंत काल तक टिकने वाला आनंद है। This is even when we are alone, when we are with people, when we are at family, wherever we are, we enjoy him. वो आनंद ऐसा है कि जब हम अकेले हैं या हमारे परिवार के साथ है या किसी लोगों के साथ भी है, फिर भी हम उस आनंद को अनुभव The करते हैं। bridegroom's responsibility is to make the guest enjoyable. और ये दुल्हा जो होता था उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि जो लोग आते हैं उनको आनंद में शामिल करें। That is what Jesus is giving us. और यीशु मसीह उसी चीज को He हमें दिखाते gives हैं। us his blood as a new wine that we will be happy forever. और यीशु मसीह उसके खुद के लहू को देते हैं एक नई दाखरस की तरीके से जिसके द्वारा हम हमेशा खुश रह सकते I हैं। just wanted to give you 2 important things that what we can take from here. मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हम इस बात से सीखते हैं। One thing is rely on Jesus for everything. हम हर चीज के लिए यीशु के ऊपर भरोसा Whether करें, it's a physical need, या यदि वो शारीरिक जरूरत हो सकती spiritual है need, या आत्मिक जरूरत हो it's सकती emotional है need, या फिर हमारी भावनिक जरूरत हो financial सकती है, need, या फिर हमारी आर्थिक जरूरत हो relational सकती है, need, या फिर हमारा एक दूसरे के साथ नाता है उसमें or जरूरत even हो a सकती need for enjoyment, है। और शायद हमें आनंद के लिए भी वो जरूरत हो सकती है। we can go to Jesus for everything. अगर वो सब चीजें चाहिए तो हमें यीशु मसीह के He पास will जाना never say चाहिए। that this is not very much needed now. यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। Let us ask him and we will receive that. आइए हम पूछें और उन बातों को हम परमेश्वर We से can प्राप्त depend on करें। Jesus and he is for everything for us. हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रह सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ He है। is the one who understands us better. और वही अकेला इंसान है जो हमें एक अच्छी तरीके से जान सकता Nobody है। else understands us in this दूसरा world. कोई भी नहीं यीशु मसीह के तरह हमें पहचान सकता है He या knows देख us सकता है। well वो हमें अच्छी तरह से because जानता he है has formed us with his hand. क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। And second thing is, और दूसरी बात को हम देखेंगे, remember the cross daily. रोजाना क्रूस को याद रखें। How come the cross came into this picture? कैसे ये क्रूस की बात यहाँ पर आ जाती है? This is the cross Jesus shed his blood. वो यही क्रूस है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था। That has become the blood, that has become the wine for us to drink. और वही लहू हमारे लिए वो नई दाखरस बनती है। That is the new wine for और us. वही हमारे लिए नई दाखरस बनती He है। took all the pain
for our enjoyment. यीशु मसीह ने सब दुख या सब दर्द जो थे वो हमारे आनंद के लिए ले लिए। How the wine is made? जो दाखरस है वो कैसे बनता है? The grape is crushed. जो अंगूर होते हैं उनको कुचला जाता है। The grape is crushed to make the wine. अंगूरों को कुचला जाता है ताकि एक अच्छा दाखरस बने। What Isaiah prophet says, यशाया नबी क्या कहता है? he was crushed for our iniquities. वो हमारे पापों के लिए कुचला गया। Jesus was crushed for our iniquities on the cross. हमारे बुराइयों के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर कुचला गया। To make us happy, ताकि हम आनंदित हो to सकें, make us joyful. ताकि हम उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है उसको प्राप्त The कर joy सकें। will come only when we go to the cross daily. उस आनंद को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम हमारे जीवनों को क्रूस की तरफ लाते हैं। Every day let us start walking closer to the cross. हर दिन की जिंदगी में, हर दिन के जीवन में हम क्रूस के नजदीक आते जाएं। Let the shadow of the cross fall on every area of our life. क्रूस की जो छाया है वो हमारे सभी के जीवनों में आए। Then we will really have the joy of God in our life. तब हम वो परमेश्वर से मिलने वाला आनंद जो है वो हमारे प्रतिदिन के जीवनों में प्राप्त कर सकेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Jesus shed his blood for us. यीशु मसीह ने उसका लहू हमारे लिए बहाया। There is no other message that can make us happy. और वहाँ पर ऐसा कोई भी संदेश नहीं है जो हमें खुश या आनंदित कर सकता है। He is the true wine. यीशु मसीह ही हमारी नई दाखरस है, सच्ची दाखरस है। He gave the cup to us. उसने वो कटोरा हमें दिया है। There was a cup of the Father. वहाँ पर पिता का जो कटोरा था वो था। The cup was filled with the wrath of God. और वो कटोरा परमेश्वर के क्रोध से भरा हुआ था। Jesus took the cup. और यीशु मसीह ने वो कटोरा ले लिया। He drank it completely. और उसने उस कटोरे को पी लिया। Then he gave another cup to us. और उसने हमें दूसरा कटोरा दिया। That cup was filled with his blood. और वो कटोरा उसके लहू से भरा हुआ था। The most difficult cup he has drunk. जो बहुत ही अपमानजनक या बहुत ही चिंतादायक जो कटोरा था वो उसने ले लिया। The most delightful cup he has given to us. और जो आनंद देने वाला जो कटोरा था वो उसने हमें दिया। What a wonderful God we serve. कितना अच्छा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। Father God, we thank you for the great sacrifice you did on the cross. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान से जीवन के लिए जो आपने उस क्रूस पर दिया। Help us, Lord, that we go to the cross daily. परमेश्वर आप हमें मदद करें कि हम हमारे रोजाना जीवन में क्रूस की नजदीक जाएं। Help us, we drink your blood every day. हमें आप मदद कीजिए कि वो लहू हम रोज हमारे जीवनों में लें। You meet every need of us, O Lord. आपने हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया है प्रभु जी। We wait for your time. हम आपके समय का वेट करते हैं प्रभु। In Jesus' name we offer this prayer. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.